स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके देन। So today we are discuss about the good morning everyone. Today we are discuss about the maintenance and the live-in relationship. Till now we cover the two aspect of the family law of marriage. हमने मैरिज समझा अभी तक और वॉइड मैरिज का कंसेप्ट समझा. नाउ वी आर गोइंग इन दैट एरिया कि भाई मैरिज हो गई है. नाउ हु हैव टू बी मेंटेन एंड हु विल बी मेंटेन टू ईच अदर. किसको मेंटेन करना, किसको मेंटेन ना करना. और अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस वी आर गोइंग विद द लिव इन रिलेशनशिप आल्सो. व्हाट्स अबाउट द लिव इन रिलेशनशिप इन अ करंट एरा. तो व्हेन वी गो विद द लिव इन रिलेशनशिप चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. टिल नाउ वी आर जस्ट डिस्कस कि भैया देखो सबसे पहले मैरिज का एक चीज़ समझे. द होल सिविलाइजेशन इज कम फ्रॉम द मैरिज. इंडिया में मैरिज को स्पेशली इन हिंदू लॉ मैरिज आज treat as a sacrament, as a rituals value, as a one of the major moral things. मैरिज से आप व्यक्ति की मॉरलिटी को डिटरमाइन करते हैं, कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं. तो वाई वी गिव द सो मच प्रिविलेज एंड सो मच रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज. रीजन बीइंग कि whole civilizations are based on the marriage. We human being are a social animal, and that social animal are become from the animal to social animal only by because of marriage. The difference between the human being and the animals is that we are make a sexual intercourse on a specified partner, on a specific partner after getting the consent of with that partner and the whole society. We are not like an animal कि किसी के साथ भी sexual relationship हो सकता है. We have a very specific value for a marriage. दैट्स वाई वी आर कॉल एज अ सोशल एनिमल. तो मैरिज जो ह्यूमैनिटी का और सिविलाइजेशन का जो इंस्टीट्यूट है ना, उसका बेसिक क्रक्स है मैरिज. इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. उसकी बेसिक मीन रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज मैरिज. नाउ वट वी आर डू, वी आर कम इन लिव इन रिलेशनशिप. And live-in relationship is nothing, is just to do the sexual relationship, just make a sexual relationship without any binding, without any rituals, without following any type of custom, without inform to society, without inform to the anyone. We just take the consent from the two partners with each other and start to live with them like an husband and wife. It's very dangerous for a human being and for a society. If we are not going through the civilization, we are going from backward now. हम फॉरवर्ड नहीं जा रहे. अगर कोई ये समझे कि शादी से हमारे राइट्स को या फिर हमारे रिक्वायरमेंट पे लिमिटेशंस हो रही है, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. मैरिज तो वो इंस्टीट्यूट है जो आपको एक ह्यूमन बीइंग बनाती है, जो आपको डिसिप्लिन देती है. एंड सो मेनी पीपल आर थिंक दैट नाउ द मैरिज हैज़ बीन अ बैड कंसेप्ट. ये आपकी राइट को रोकता है, फ्रीडम्स को इन्फ्रिंज करता है. इट्स नॉट राइट. ऐसे तो हम रहते ही थे. व्हाट्स द न्यू विद इट? व्हाट्स अबाउट दैट बिग थिंग, बिग सोसाइटी, नॉर्म्स, रिचुअल्स, वेयर वी दीज आर गो. अगर वही चीज़ लानी है, वही हमें आदिवासीपना लाना है, इलिटरेसी लानी है, so what's about the education between us, what's about the morality between us, what's about the security between a live-in relationship? But after there's so many tussle, we are come on that area that we legalize the live-in relationship. We legalize it. There's a series of case which start from the Badri Prasad, sorry, wait, हाँ, क्या दिक्कत है. बद्री प्रसाद केस से ये बात स्टार्ट होती है. फर्स्ट द बद्री प्रसाद केस कम इन 1978 एंड इन द लास्ट वी हैव विद द केस ऑफ इंदिरा शर्मा. इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के शर्मा का केस है इन 2013. आई प्रोवाइड द PDF टू यू, यू कैन मेमोराइज द लिस्ट ऑफ केसेस विद दैट. बद्री प्रसाद केस में पहली बार वी रिकॉग्नाइज दैट द लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट अ ऑफेंस. Simply if I go with the legal statute, तो भैया we have a right to live and we have the right to make a relationship with anyone. It's completely our choice. It's completely the choice of a human being. It's quite true. Nothing wrong with that. But till now with the Indra Sharma and versus V.K. Sharma case, we completely recognize the live-in relationship. Not only live-in relationship between the male and female, we also recognize the live-in relationship in a homosexuality. होमोसेक्सुअल्स के केस में भी हमने
लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ कर दिया. इवन वी अलाउ अ रिलेशनशिप लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन अ मैरिड मैन एंड अ अनमैरिड वुमेन एंड अ अनमैरिड वुमेन विद अ मैरिड मैन. हमने ऐसे भी अलाउ कर दिया. ठीक है. तो बिकॉज देखो थिंक ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इज कम ओनली विद दैट व्हेन वी गेट अ मैरिड विद अनदर वन इन अ प्रेजेंस ऑफ अवर स्पाउस. अगर अपने स्पाउस के प्रेजेंस में आप किसी और से मैरिज करते तो ही तो बाइगेमी लगेगी. वी आर नॉट मैरिड, वी आर जस्ट टू लिव विद समवन एल्स. दैट इज नॉट ऑफेंस एंड कोर्ट आल्सो अलाउड इट. इट्स नॉट अ ऑफेंस. On that ground my spouse are live with someone another with some another one, you can take a divorce but you cannot treat it as an offense. अब तो adultery भी offense नहीं रहा. So the scenario is changed. Now the question is raised, what's about the relationship between them? If I talk to me recently, Uttarakhand government, यूके गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अ लिव इन रिलेशनशिप. उन्होंने उसको लीगल स्टेटस दे दिया. कोर्ट ने तो पहले दे ही दिया, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अब एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको लीगल स्टेटस दे दिया है. एंड इफ आई थिंक अबाउट द राइट्स, तो सेक्शन 114 इट्स अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट, पुरानी वाली इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 रिकॉग्नाइज द लिव इन रिलेशनशिप एज अ एविडेंस कि if the husband and wife if the male and female resemble the society like a husband and wife, then the society and court presume them they are the husband and wife. तो कोर्ट उनको हस्बैंड ऑफ वाइफ ही प्रिज्यूम करके चलेगा. और सारे लीगल राइट्स विच द वाइफ हैव अगेंस्ट द हस्बैंड एंड द हस्बैंड हैव अगेंस्ट द वाइफ, देट आर कंप्लीटली वेस्टेड विद देम. उनको सारे वो राइट्स भी मिलेंगे. इफ आई टॉक अबाउट द मेंटेनेंस, सेक्शन 125 of CRPC give the right to maintenance to them. If I talk about the inheritance, they also have the right to succession with that. And the court, if you go with the section 26, if I am not wrong, Hindu Marriage Act section 26 says that the any child which come from the marriage, either be a void and a valid marriage, all child are legitimate. है ना. Let me just correct that section. I am quite sure कि 26 ही होना चाहिए. हाँ हाँ, ये पुरानी वाली CRPC की है. आई डिडंट गेट यू, क्या कह रहे हो आप? जो पुराने सेक्शन है जो CRPC के नहीं, सेक्शन तो देखो आपको नए वाले लिखने हैं, बट ओके आई विल प्रोवाइड टू द न्यू सेक्शंस आल्सो विद दिस. ठीक है, सेक्शन आपको अब नए वाले याद करने. अब तो नए वाले आएंगे आपके साथ. व्हेन वी कम विद द BNS, जब हम IPC पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब मैं BNS के नए सेक्शन बताते चलूँगा. देन यू हैव टू बी गो विद इट. ठीक है. और देखो ऐसा भी है कि एक दो सेक्शंस आपके पुराने वाली से भी आ सकते हैं. कंपैरेटिव स्टडी का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, टिल नाउ व्हेन वी आर इन जस्ट अ फेज ऑफ ट्रांजिशन, अभी हम ट्रांजिशन फेज का पार्ट है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि नए वाले सेक्शन के साथ साथ पुराने वाले सेक्शंस भी वो पूछ लें, या फिर डिफरेंस पूछ लें, या फिर ये क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज द न्यू विद द न्यू BNS या फिर न्यू IPC में क्या न्यू है. तो वो चीज़ों में वो कंपैरेटिव स्टडी हेल्प करेगा. ठीक है. वी विल बी गो विद इट, डोंट बी वरीड. व्हेन वी कम विद द क्रिमिनल लॉ तो हम सारे उसी सेक्शंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. वन थिंग मोर कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 16 है, 26 अबाउट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड एंड सेक्शन 16 is about the legitimacy of the child, and section 16 is very clear with that कि doesn't matter the marriage is void, voidable or valid, child is always come from the that type of wedlock, it's a legitimate child, but because the court want to be go in a lose of paternity with the child. ठीक है. तो लिव इन रिलेशनशिप में एक दो बातें समझनी कि भैया एक तो उनके पास मेंटेनेंस का राइट है, and second they have the right of inheritance, and right of children born out of that relationship are deemed as a legitimate child. Apart from that is the concept of homosexuality कि भाई मेल फीमेल का तो ठीक है, they get the married या फिर either they will live in a live in relationship. Now we also give the allowance to the
homosexual marriages by virtue of the case of Joseph Sain versus Union of India. इसके बाद हमने अननेचुरल सेक्स को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया. वी आर नॉट टेकिंग एज द अननेचुरल सेक्स एज अ ऑफेंस. क्लियर? यहाँ तक तो बात हुई लिव इन रिलेशनशिप की. नाउ वी कम विद द कंसेप्ट ऑफ मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस का जो कंसेप्ट है इट्स क्वाइट वेरी वाइड एंड it's not be easy to understand. If I talk about the word maintenance, CRP सेक्शन 125 भी मेंटेनेंस की बात करता है. हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 भी मेंटेनेंस की बात करता है. इसके अलावा मैं अगर कहूँ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18 भी मेंटेनेंस की बात करता है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 25 एंड so many other provisions are also give the clarifications regarding the maintenance. इसके अलावा मुस्लिम मैरिज एक्ट 1985, let me check it, 1986, sorry, Muslim Marriage Act 1986 also we talk about the maintenance. So what will be preferred in a case of Hindu and a case of Muslim, where we will be go? So first where we will be choose, so it's the थिंक अबाउट कि हाँ विच कौन सा राइट चूज होगा, कौन से सेक्शंस में आप जाएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स पे जाएंगे या फिर आइदर यू विल बी गो इन अ फैमिली कोर्ट या डोमेस्टिक वायलेंस में उससे मेंटेनेंस मांगा जाएगा. कहाँ पे कौन सी चीज़ें क्रिएट होंगी. एंड व्हाट्स अबाउट द मुस्लिम्स, हाउ दे गेट द मेंटेनेंस एंड व्हाट्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द मुस्लिम्स. So when we discuss about the maintenance, we have to be first recognize that the who get a right to maintain. If I say that you have to be pay the maintenance, so first of all we have to be, the question come in our mind ki who is have the right to get maintenance. If I go with the maintenance, so it means there is someone who is depend on us. भाई जो हम पे डिपेंड होगा उसे ही हम मेंटेनेंस देंगे. वी आर नॉट गो विद द पीरियड, वी आर जस्ट गो इन अ थ्योरेटिकल क्लासेस की पीरियड की सिंक्रोनाइजेशन में ना पढ़ा के थोड़ा सा हम अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले मेंटेनेंस देना है हमें डिपेंड, जो हम पे डिपेंड है. इसका मतलब जो डिपेंडेंट है वी हैव टू बी गिव द मेंटेनेंस टू देम. सो द सेक्शन 21 and 21 and 22 are give the meaning. Wait, हाँ, section 21 and 22 are give the meaning of the dependents of Hindu Maintenance and Adoption Act. ठीक है. So what they give the section, they give the list कि who are the dependent. This is primarily we are go with the three ones: wife, children, parents and grandparents. There is someone also can be added in it, but we are go with these three ones. वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को एंड चिल्ड्रंस को. फर्स्ट आई कवर्ड विद द चिल्ड्रन, मेल एंड फीमेल. अगर कोई अनसाउंड है या अनकेपेबल है टू मेंटेन देमसेल्फ, उसको पूरी लाइफ आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, आइदर बी अ मेल और बी अ फीमेल. फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट क्लियर. नाउ इफ आई गो विद द मेल, इफ इज अ अर्निंग मेल और 18+ मेल, no have the right of maintenance. If the male is above than 18 and he is earning, he have not a right to get maintenance. He is not a dependent. He just not, we are going, he is not a dependent now. If I go with the female, so unmarried female always have a right of maintenance because she is a dependent. Unmarried unearned female, apart from the married female also have a right to get dependents, but in the class of a married female, she is depend on her husband. तो मैरिड फीमेल के केस में हस्बैंड उसको मेंटेनेंस देगा और अनमैरिड के केस में उसके फादर उसको मेंटेनेंस देंगे. क्लियर. अनदर कंसेप्ट इज रिगार्डिंग व्हाट्स अबाउट द विडो. Widow also have a get right to maintenance from the 2-3 modes are available with the widow. First we go with that. देखो पहले विडो का क्या रहेगा कि जो प्रॉपर्टी उसके पास है, जो हस्बैंड के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी मिली है, उससे अपना मेंटेनेंस करे या फिर उस प्रॉपर्टी की अर्निंग से उसका मेंटेनेंस हो या फिर कोई जॉब वगैरह से खुद मेंटेन करने लायक हो.
then the children, if the children are measured and they are unwell, they are earning children, they have to right to maintain they have to right to maintain the mother. They have to duty, they have to maintain mother. If the children are small, she also not have that much amount of property with her to maintain herself, then it is the duty of the father-in-law by virtue of section 19. फादर-इन-लॉ की ड्यूटी बनती है, ससुर की. Then she have to be maintain his daughter-in-law. In what circumstances? First of all, the father-in-law capable to maintain her. अगर फादर-इन-लॉ के पास कुछ है ही नहीं तो मेंटेन कहाँ से करेगा. सेकेंड थिंग इज दैट कि he have to be maintain her daughter-in-law if he have the coparcenary property. जितना उसकी coparcenary property में इंटरेस्ट है उतना ही उसे मेंटेन करना पड़ेगा. सपोज ये प्रॉपर्टी है और हस्बैंड के जाने के बाद उसका कुछ हिस्सा फादर को गया, कुछ हिस्सा वाइफ को गया. अब जो फादर की भी प्रॉपर्टी फादर के जाने के बाद किसको आनी है, वाइफ को. तो जितना इंटरेस्ट फादर का उसको वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी में है, या फिर ये मैं कहूं कि फादर का उस प्रॉपर्टी में है, उतना उसको कम से कम पे करना पड़ेगा. ठीक है, उतना मेंटेनेंस उसे देना पड़ेगा. सो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑन द फादर इन लॉ इफ ही हैव द प्रॉपर्टी विच कोपार्शनरी प्रॉपर्टी विद द इंटरेस्ट ऑफ वाइफ, देन ही हैव टू बी पे टू द डॉटर इन लॉ. क्लियर. देन द रियल फादर ऑफ दैट वुमेन, जो उसके रियल फादर हैं, दे विल हैव टू बी मेंटेन देयर द मैरिड विडो डॉटर. मैरिड विडो डॉटर का भी मेंटेनेंस उसके फादर मदर्स को होगा, उनको करना पड़ेगा. शी इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन हर, ऑन दैम. क्लियर विद द चिल्ड्रन. क्या चीज. अगर वो अर्न करती है तो वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि या तो जो प्रॉपर्टी बची है उससे, और या फिर खुद अर्न करे तो उससे. अगर अर्न के लिए कैपेबल है फिर तो ये दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डिपेंडेंट ही नहीं है. ठीक है, ये हुआ हमारी बात चिल्ड्रन का. इफ आई गो विद द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दीज आर आल्सो डिपेंडेंट. इट्स द ड्यूटी ऑफ अ सन्स एंड डॉटर, नॉट ओनली विद द सन. डॉटर की भी ड्यूटी कि अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे if they are able. Because the wife, because the daughter in some majority basis, in a general way, general rule, daughter are not capable to give the maintenance to their parents. Reason because she is not earned, she is not independent, she is also a dependent on someone. But the son is a dependent, not the son is a independent. So it is a prime duty come on the son first. ठीक है, तो सन पे जरूर ड्यूटी रहेगी कि अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन हिम. डॉटर पे भी है, बट इफ शी इज नॉट इंडिपेंडेंट, देन इट विल नॉट बी गो द ड्यूटी ऑन हर. क्लियर. ये तो हुआ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस का टिल नाउ. These are covered by the only and only Hindu Maintenance and Adoption Act and the adoption provisions regarding the Muslim marriage. Now I come with the wife. How the wife get maintenance? Hindu law तो बड़ा clear और simple है. The wife get the maintenance either through the Hindu Marriage Act or through the Hindu Adoption and Maintenance Act and or through with the CRPC. किसी भी एक्ट में जाके ले ले. लड़ाई वगैरह चल रही है CRPC में चले जाओ. डिवोर्स ले रहे हो तो हिंदू मैरिज एक्ट में चले जाओ, डिवोर्स के साथ साथ मेंटेनेंस बंधवा लेंगे. और अगर साथ रह रहे हो, लड़ाई भी नहीं है, स्टिल ही स्पेशली क्लेम फ्रॉम द हस्बैंड की बेसिक नीड तो पूरी कर, वो ठीक से नहीं रख रहा, देन यू गो विद द हिंदू मेंटेनेंस अडॉप्शन एक्ट फॉर द वाइफ. नाउ आई कम विद द थिंक व्हाट्स अबाउट द वाइफ इन अ मुस्लिम केसेस. हिंदू वाइफ का हमने कवर्ड करा. You have the so many ways and whatever this she requires, she will be get the maintenance from him. One thing is that, अच्छा, one thing is also left, amount of maintenance. Amount of maintenance we have not to be bothered about the so many rules and laws regarding that. I just give a single tip with that कि जैसे आप हो ऐसे ही दूसरे को maintain करोगे. If the someone depend on you, you have to be treated them as you live like yourself. As to be you maintain yourself, ऐसे ही दूसरे को मेंटेनेंस दोगे. अब आप एक सुपर डुपर लग्जरी लाइफ जी रहे हो, दूसरे के लिए आप बेसिक नीड ही पूरे कर रहे हो, दैट विल नॉट बी अलाउड.
whatever the standard living standard of your, you have to be also provide the same living standard to your dependent, otherwise it create a contradiction between them. भाई मैं बहुत अच्छा रहता हूँ और बड़े बढ़िया कपड़े पहनता हूँ, बट मैं अपने बेटे को, अपने किन्स को अच्छे कपड़े नहीं देता, अच्छी फैसिलिटीज नहीं देता, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। तो बेटे के मन में तो बुरी भावना आएंगी ही आएंगी, माई फादर इज नॉट अ गुड फादर, दैट इज नॉट अ सिंबल ऑफ अ गुड मैन। सो वी हैव टू बी गिव द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो वो अमाउंट रहेगा। मेंटेनेंस का कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि इतना ही होगा, कितना भी हो सकता है। क्लियर? इट्स नॉट अबाउट द बेसिक नीड, इट्स अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड। अगर कोई कहे कि जी इतने पैसों में तो बेसिक नीड तो पूरी हो जाती है, तो बेसिक नीड का कंसेप्ट नहीं है। व्हेन अ वाइफ गेट मैरिड टू यू, सी लुक योर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सी आल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू यू आल्सो प्रोवाइड मी द सेम टाइप ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड टू मी, सेम टाइप ऑफ लाइफ टू मी। नाउ यू से दैट कि तुझे तो मैं बेसिक नीड दूंगा, इट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है? So that is the simple Hindu law, and the so many provisions we already discussed. Now we come with the Muslim marriage, Muslim law. Before the 1986 in a Saira Banu case, इस एक्ट के आने से पहले, मुस्लिम मैरिज एक्ट आने से पहले, मुस्लिम्स को जो मेंटेनेंस का था अलाउ, वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक का था। If a husband give the divorce to a Muslim woman, he will be pay the maintenance to till the only iddat period, and if she pregnant, then they will give the maintenance to the wife only till the delivery of baby, only with the end of pregnancy। जिस दिन प्रेगनेंसी का एंड हुआ तब तक ही मेंटेनेंस मिलेगा। Now the thing is very different। अच्छा, एक चीज और थी, if I go with the old IPC, sorry, old CRPC section, I think 28, let me check, I just provide to the right and appropriate section। I just reminded कि एक प्रोविजन ये भी बता ही देते हैं, give me a minute। सेक्शन 28 ही है। नहीं, इट्स सेक्शन 26 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, 127 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। एक चीज़ थी, बस थोड़ा सा इसे समझ लेना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी गो इन दैट मच। वन थिंग इज दैट कि एक लॉ है सेक्शन 127 में, इट सेज दैट कि एट द टाइम ऑफ डिवोर्स ड्यू टू सम रिचुअल्स वाइफ गेट सम लमसम अमाउंट, then she will not be eligible to get the maintenance in the under the CRPC section 125। अगर किसी रिचुअल्स की वजह से वाइफ को डिवोर्स के टाइम पे एक लमसम अमाउंट पे करना ही होता है हस्बैंड के द्वारा, देन वाइफ इज नॉट अलाउड टू गेट मेंटेनेंस थ्रू सेक्शन 125। क्लियर? ये प्रोविजन समझ आया? इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम मेल्स आर मेक अ प्ली दैट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स दे गिव द अमाउंट ऑफ मेहर, कि जी हम तो मेहर का अमाउंट देते हैं, और वो 127 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी से रिलेट भी कर रहा है कि भाई डिवोर्स के टाइम पे जो आप लमसम अमाउंट देते हो, अगर आपका रिचुअल्स ऐसा कहता है तो मेंटेनेंस नहीं देगा, इसलिए हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। But the court says that the amount of meher are not related to the husband। भाई जब शादी हुई मेहर का अमाउंट फिक्स हुआ, तो मेहर दो तरीके थे, या तो जिस टाइम पे डिमांड होगी तब दे दिया जाएगा, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस आएंगे तब पे करा जाएगा। तो ऐसा जो अमाउंट पहले ही डिसाइड है, जो देना ही जाएगा, इट्स नॉट रिलेटेड विद द हस्बैंड, इट्स रिलेटेड विद द वाइफ। वो तो शुरू से ही वाइफ का था, व्हाट द हस्बैंड गिव न्यू टू हर। एक चीज,
दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि चलो अगर मैं मानूं वो हस्बैंड का भी था, तो द ऑब्जेक्ट बिहाइंड टू गिव द मेहर इज नॉट टू बी पे एट द टाइम ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स मनी तो वो थी नहीं, मेंटेनेंस मनी नहीं थी, इट्स द अमाउंट विच रिलेट टू द रेपुटेशन ऑफ अ वुमेन। ये तो वुमेन की डिग्निटी, वुमेन की रेपुटेशन का अमाउंट था जो डिसाइड हुआ, इट्स नॉट विद द मेंटेनेंस अमाउंट। So how can you treat that thing in a similar way? So the court says that the section 127 subclause 3 subclause B will not be applied to that conditions, and Muslim female also have a right to get a maintenance by virtue of CRPC 125 because CRPC is not a religious law, personal law तो है नहीं भाई। हिंदू भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, स्पेशल हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ तो ये था नहीं। इसी लॉ का सहारा लेके सायरा बानू कोर्ट आई। अब जब सायरा बानू कोर्ट आई तो बड़ी स्थिति अलग अलग हुई। देन कोर्ट गिव द ऑर्डर एंड रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट टू काइंडली मेक अ लॉ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन। उस लॉ को देखते हुए मुस्लिम मैरिज एक्ट 1986 आया। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अब बात के आगे आते हैं कि 1986 में मुस्लिम मैरिज एक्ट आया। यू जस्ट हैव टू बी हेयर अबाउट इट। हमें स्टैटिक पढ़ना है वैसे तो, पर जस्ट थोड़ा सा समझ लें कि जब मुस्लिम मैरिज एक्ट 1986 आया, इट्स हैव सो मैनी एम्बिग्विटीज विद इटसेल्फ। बहुत सारी इसमें कमियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। वट दे सेड, द एक्चुअल लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एक्ट सेज दैट द वाइफ get the right to take maintenance from her husband till इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड तक तो देगा ही देगा। उसके बाद उसने कहा कि भैया पहले हस्बैंड से मांग ले, हस्बैंड देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने बच्चों से मांग ले, चिल्ड्रन से मांग ले। चिल्ड्रंस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने फादर या अपने मदर या फिर अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों से मांग ले, अपने परिवार से मांग ले। वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी कोई रिलेटिव बचा उन सब से मांग के देख ले। वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड देगा। That make the thing with the Muslim woman, they left her out to not claim the maintenance, to beg the maintenance from the so many peoples। भीख मांगने के लिए उसे छोड़ दिया गया। हस्बैंड से मांग ले, अब बेटे से मांग ले, अब अपने घर वालों से मांग ले, कोई और रिश्तेदार बचे उनसे मांग ले। जब तू ये प्रूव कर देगी तुझे कहीं से नहीं मिला, तब वक्फ बोर्ड से कुछ थोड़ा बहुत पैसा दबा देंगे। And they also said give a one section with that कि if the party are ready then they can file the maintenance under section 125 CRPC if the party ready। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी रेडी होगी तो CRPC के 125 सेक्शंस में आपको मेंटेनेंस दिला देंगे। That act when come in a question in court, then the court says that it's not right। कोर्ट ने उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन ना करके, if you remember the interpretations, court make the interpretation of the mischief and golden rule interpretation। और कोर्ट ने कहा कि जो मिसचीफ था मुस्लिम वुमेन के साथ कि उसे मेंटेनेंस का राइट नहीं मिल पा रहा, वो तो दूर हुआ ही नहीं इस एक्ट से, उल्टा उसे तो पिलर से पोस्ट तक घूमने के लिए अकेला छोड़ दिया। That's not a right remedy for a woman who already is a aggrieved one। You said to her that go and beg the maintenance from the people। तो मिस्चीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने लगाया और गोल्डन रूल लगाया। एंड कोर्ट सेज दैट द वुमेन हैव अ कंप्लीट राइट टू गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द CRPC बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 125 इज अ वन थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि वुमेन हैव अ राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम एनी ऑफ वन। इन सब में से किसी से भी क्लेम कर सकती है और सबकी ड्यूटी है, बट द प्रायोरिटी गिवन इन सीक्वेंस की पहले सबसे पहले हस्बैंड की ड्यूटी है। अगर हस्बैंड नहीं है तब दूसरे पे जाएं। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि नहीं दे रहा तो दूसरे पे जाएं, नहीं है, दे ही नहीं सकता, कैपेबल ही नहीं है, तब दूसरे पे जाइए। क्लियर? तो कोर्ट ने इस तरीके से उसको इंटरप्रेट करा। सो नाउ वी कैन से दैट द मुस्लिम in a Muslim woman right of maintenance are vested to them till the iddat period directly in a both in a legal and the moral values।
Apart from that, the Muslim Marriage Act 1986 gave the right and obligation on the husband, and so many another one. In a case of absence of husband, another one have the duty to provide the maintenance to widow and Muslim women. If still there is nothing they left with them, they can completely file a case under section 125 of CRPC and get the maintenance from the husband. Clear with it? तो आज हमने मेंटेनेंस के बाद सबसे पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप समझा और हमने माना कि उसमें जितने भी राइट हैं, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, लेजिटिमेसी एंड होमोसेक्सुअलिटी मैरिज, all are based with the live-in relationship by virtue of section 114 of Indian Evidence Act and so many other provisions of the maintenance. 114 Indian Evidence Act से हमने उन्हें एज अ मैरिड कपल डीम्ड कर लिया, प्रोज्यूम्ड कर लिया. If I go with the maintenance, then first we go with the children maintenance, then parents and grandparents, then wife. Wife, there is a two case, Hindu law and Muslim law. In both laws have the give the complete duty on the husband to get the to provide the maintenance to their wives. Clear? चलो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं. देन थैंक यू.